Hello viewers, how are you? This is Amit Kumar Pathak, Faculty of History and Civics. I am teaching in Jesus and Mary Academy. It is the second lecture of the very first chapter of Civics, Chapter 1, our Constitution and its salient features. Today we will discuss about the adoption, enactment and enforcement of our Constitution. It is very important for all those students who are studying in ICC board school in standard 9th school. So let's begin our chapter. The Assembly, the Constitution Assembly had its very first meeting on 9 December 1946, as you all know, and Dr. Sachidanand Sinha, the oldest member of the House, was elected as an interim president of the Assembly. Later, on December 11, 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent president of the Assembly. Our Constitution Assembly has 8 committees, and drafting committee was the very important committee out of all those committees. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of our drafting committee, and later he became the law minister in Nehru's first cabinet. He was responsible for drafting and piloting India's present constitution. The second, date of enactment and adoption of the constitution. Our constitution was enacted and adopted by the Constitution Assembly on 26 November 1949. That means it took 2 years, 11 months and 17 days to finalize and adopt or enact our Constitution. This shows that the Assembly did its job with great deliberation. Our Constitution, every law, act that our Constitution contains was discussed, there were debate over it, and it was adopted by the full majority of our Constitution Assembly members. Our Constitution Assembly debates have been published in several volumes. You can even go and search it on Google and you will find the debate on various laws or act done by the Constitution Assembly members. The third is date of enforcement of Constitution. As you know, Constitution came into force on 26 January 1950. On that day began Dr. Rajendra Prasad, the first term of office as President of Indian Union. I have already told you, our Constitution Assembly has elected Dr. Rajendra Prasad as the very first President of the Constitution Assembly. And later he became the first President of India as well. And 26th January is celebrated all across India as the Republic Day. It is also the national festival of our country. Now, very important question that I would ask to you, and please answer it in the comment box, that India has got independence on 15 August 1947. Our Constitution was adopted on 26 January 1950. The time period was around 2 years, 12 months and around 25 days or something like that. So, how our country was governed by the government in lack of constitution? This is what you have to answer in the comment box.
Next is significance of January 26 in India's struggle for Swaraj. Um, as you know, our constitution was adopted on 26 January, though it was prepared on 26 November, but still it took 2 months. So why is it important? Why it was uh, enforced on 26 January? So the Congress session at Lahore on December 29, 1929 had passed a resolution. Resolution means uh, any proposal passed by a majority on and declaring Purna Swaraj. That means uh, I have to go a bit back in its history. Uh, Congress has two segments or letter. Though Congress was introduced in 1885 by the A.O. Hume, but later Congress was divided into two wings due to the mode of fight, mode of how to get India independent, to get India free from the British control, or the each wings has different thoughts. Now, one of the wings का ये मानना था कि इंडिया would have its own government within the country, but it should be under the crown of British. That means provisional level पे, local levels पे India would have its own government, local government, whereas all the local government would be controlled by the Queen of England. Whereas the other wing has a very clear view that India would have clear independence, it would have complete independence, that is called Purna Swaraj. So on 29 December 1929 a resolution has been introduced and it was finally accepted on 26 January that India will celebrate as a Purna Swaraj all over India on 26 January 1930, and it continued to be so observed until 1947. On achieving independence on 15 August, when India has got independence, 26 January, however, marked a great event in India's struggle for freedom. It was therefore in the fitness of things that January 26 should have been selected as the date of commencement of the new constitution. So 26 January 1930, this date was selected, or you can say that nominated by the Constitution Assembly members, by the congressmen in its meeting, that India now wants Purna Swaraj, complete independence. So to celebrate that particular day, 26 January, the day in which a resolution was passed by the congressmen, तो आज़ादी के बाद इस डेट को यादगार बनाने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए, दे हैड enforced our constitution on 26 January. So now our original constitution has 395 articles and 12 schedules, जो कि अब चूँकि आज़ादी के इतने समय बाद there were several amendments कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किए गए हैं, तो ये बढ़कर 400 समथिंग आर्टिकल्स हैं. ठीक है. Our next topic is preamble. Preamble पे already I have made a video जो मैं comment box में आपको link share कर दूंगा. You can
गो एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्रेम्बल पे तो आप उसको देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सम ऑफ द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द वेरी फर्स्ट फीचर इज इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है आप जानते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन इन विच sets forth in a single written instrument most of the principles under which a government shall be organized and conducted. Constitution of this type are enacted by the Constitution Assembly at a particular date. That means एक ऐसा constitution जो कि written है, that means it is written and all those laws and act are introduced in the constitution after debate and discussion by the Constitution Assembly. Whereas unwritten constitution is one which has never been codified by a constitution assembly, यानी कि किसी तरह पे इसका डिबेट एंड डिस्कशंस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा नहीं किया गया है। रादर इट इज़ बेस्ड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट्स। बजाय इसके अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक ऐसी असेंबली जिसका काम होता है कानून बनाना, उसमें जो भी टाइम टू टाइम न्यू लॉज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नीड or on the basis of how to govern the country or the need of the governance के आधार पे जो भी टाइम टू टाइम लॉज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उन लॉज को वो मेंशन करते हैं और कलेक्टिवली एक जगह कलेक्ट करते हैं। दैट इज़ नोन एज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट देयर जुडिशियल डिसीजंस, कस्टम्स एंड यूजेस। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट, whereas इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इन शॉर्ट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक टीम ऑर्गेनाइज की जाती है, जो हमारे देश में आज़ादी से पहले किया गया, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आप कहते हैं, ऑल अक्रॉस इंडिया। वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बताया था, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, जहाँ ऑल अक्रॉस इंडिया से लोगों को इलेक्ट किया गया एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के लिए। एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। वंस इंडिया विल गेट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भारत के गवर्नेंस के लिए वो कौन कौन से कानून होंगे, उसके लिए ऑल अक्रॉस इंडिया से लोगों को इलेक्ट करके एक जगह कलेक्ट किया गया। उन्होंने उस तमाम लॉज के ऊपर या आप कह सकते हैं बिल्स के ऊपर डिस्कशन किया, डिबेट किया एंड फाइनली एक मेजॉरिटी ने अप्रूव किया कि हाँ ये सही है। देन आफ्टर इट वाज एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में क्या है, किसी तरह का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए कोई स्पेशल असेंबली नहीं अपॉइंट की गई। वहाँ की सरकार ने जब कभी भी उन्होंने कोई कानून बनाया, उनकी गवर्नेंस के लिए टाइम टू टाइम जो उनको ज़रूरत पड़ी, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे देश में कोई कानून बनकर आया, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया फॉर एग्जांपल। तो सिटीजनशिप बिल, अगर मान लीजिए सिटीजनशिप बिल हमारे देश में नहीं था, उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कहते हैं क्योंकि सिटीजनशिप बिल में कुछ सुधार किया गया है। लेकिन आप फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हमारे देश में वो कानून है ही नहीं सिटीजनशिप के लिए, लेकिन अब सरकार ने सिटीजनशिप बिल बनाया, तो सिटीजनशिप बिल जो एक्ट लाया गया, जो कानून लाया गया, उस कानून को डिस्कस किया गया पार्लियामेंट में, डिस्कशन के बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये जो पार्लियामेंट में डिस्कशन किया गया, एक्सेप्टेंस मिली, इस एक्सेप्टेंस को हमने कलेक्टिवली एक जगह पे मेंशन किया। तो इस तरह से जो कुछ भी डिबेट और डिस्कशन के बाद टाइम टू टाइम जो भी गवर्नेंस के लिए जो लॉज की ज़रूरत पड़ती है, उन लॉज को जब कलेक्टिवली आप कलेक्ट करते चले जाते हैं टाइम पीरियड पे, तो उसको कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पहले कभी आपने ऐसा नहीं किया है, एक संविधान के निर्माण के लिए कोई स्पेशल टीम नहीं अपॉइंट की है, आपकी सरकार ने जब कभी भी कोई कानून आया उस कानून को आपने कहीं ऐड कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन। द सेकेंड फीचर, ऐसे तो हमारे संविधान के कई फीचर्स हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। एज यू नो, इट हैज़ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे और 12 शेड्यूल्स थे।
आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ओनली 7 आर्टिकल्स, हाँ सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, हमारे पास 395 आर्टिकल्स हैं। तो ये इसलिए भी है बिकॉज डिटेल डिस्क्रिप्शन है, और ईच ऑफ द एक्ट हैज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड है, इट हैज़ अ प्रोविजन ऑफ सेफ गार्ड ऑफ माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, inclusion of matters such as public service commission, elections and all things are mentioned in our constitution। तो काफ़ी डिटेल और डिस्क्रिप्शन होने के कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज हैज़ अ डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिकन फीचर्स, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन फीचर्स है। तो ये आप जानते हैं इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन कंट्री, और आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया भी है, सो आई डोंट नीड टू डिलीट अगेन हियर। ये भी मैंने आपको बताया है पहले। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमारे देश में जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे होते हैं। दैट मीन्स एवरी सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, who has 18 years of his or her age are able to vote. It is a legal right given by our constitution. क्वासी फेडरल गवर्नमेंट, भारत जो है कंप्लीट फेडरल नहीं है। फेडरल का मतलब क्या होता है, यह क्लास 10th में आपको पढ़ना है, वहाँ द वेरी फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। फेडरल का मतलब होता है अ कंट्री दैट हैव 2 or more than 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, वह देश जहाँ 2 और 2 से अधिक सरकारें होती हैं। हालांकि इसका थर्ड विंग जो है, फेडरल सिस्टम का जो थर्ड विंग है वो आपको 9th में ही पढ़ना है। द लास्ट 2 चैप्टर्स बिलोंग्स टू दिस सेगमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का जो 2 पार्ट थर्ड विंग है, यानी लोकल गवर्नमेंट का विलेज एरियाज में और शहरों में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी, ये सब आपको 5th और 6th चैप्टर में पढ़ना है सिविक्स में। लेकिन फेडरल का मतलब आप समझ लें, यहाँ पे फेडरल का मतलब होता है कंट्री दैट हैव 2 or more than 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, वह देश जहाँ 2 और 2 से अधिक सरकारें होती हैं उसको क्या कहते हैं हम, फेडरल कंट्री। तो इंडिया भी फेडरल कंट्री है बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, वन इज़ एट द सेंट्रल, द अदर वन इज़ एट द स्टेट एंड द थर्ड वन इज़ एट द लोकल लेवल। ना ईच ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द सिटीजन, ये भी आप जानते हैं। लेकिन इसको क्वासी क्यों कहा गया, क्वासी इसलिए कहा गया बिकॉज हमारे देश में जो फेडरल सेटअप है उसमें यूनियन गवर्नमेंट हैव सम स्पेशल पावर्स ग्रांटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं, एंड दैट इज़ वाई आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ क्वासी फेडरल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव स्पेशल राइट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, अलग राज्य बनाने का अधिकार है उनके पास। टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य के एरिया को बढ़ाया घटाया जा सकता है। गवर्नर ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नर्स जो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट इज अपॉइंट किए जाते हैं बाय द यूनियन गवर्नमेंट। सो इन दिस वे देयर आर सम स्पेशल पावर्स, और यू कैन से दैट कि यूनिटरी पावर्स जो हैं इट इज़ ग्रांटेड to the central government by the state by our constitution. India has a single citizenship, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे देश में ड्यूअल गवर्नमेंटशिप नहीं होती है, सिटीजनशिप नहीं होती है, आई एम रियली सॉरी, सिटीजनशिप नहीं होती है। वी ऑल बिलोंग्स टू इंडिया रैदर देन टू एन स्पेसिफिक एरिया और स्टेट यू बिलोंग्स टू। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं बिहारी हूँ, लेकिन मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मुझे सिटीजनशिप देता है वो मुझे देता है इंडियन होने का, ना कि बिहार के होने का। उसी तरह अगर आप यूपी के हैं, झारखंड के हैं, बंगाल के हैं, सिक्किम के हैं, मेघालय के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, किसी भी राज्य के हैं, या साउथ इंडिया के हैं, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, किसी भी राज्य के हैं, तो आप उस राज्य के नागरिक नहीं हैं बल्कि भारत के नागरिक हैं। इसलिए ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आप बनवाते हैं या भारत सरकार बनाती है, जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस और ऑल अदर कार्ड्स, उसमें लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैदर देन ग्रांटेड बाय द स्टेट। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एक ही नागरिकता है हमारे पास ड्यूअल नागरिकता राज्य और केंद्र दोनों की नहीं होती, हमारे पास सिर्फ एक नागरिकता होती है। नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट्री और द कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि इस पर एक अलग से वीडियोस भी बनाए जा सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी लेंथी वन एज वेल, लेकिन मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूँ कि आपको बताऊँ। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स द हेड ऑफ द कंट्री इज़ द प्रेसिडेंट, एज यू नो,
बट द रियल हेड यानी ऑल द पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं, ठीक है, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट है. बट प्राइम मिनिस्टर शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है. तो कैबिनेट मिनिस्टर के एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर काम करता है. प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी ऑल द डिसीजंस आर अल्टीमेटली और फाइनलाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज़ द रियल हेड ऑफ द कंट्री. तो इस तरह से, और भारत में जो भी लॉज बनते हैं वो सारा का सारा पार्लियामेंट खुद बनाता है, ठीक है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट के पास जो होती है सरकार, जो होती है पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट की जो सरकार होती है या कह सकते हैं देश की जो सरकार होती है, वो इसके लिए लाइबल होती है, वो देश को रन करती है और वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है. अल्टीमेटली पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट और कैबिनेट, ठीक है. Fundamental rights and duties. Our constitution grant us some rights that is known as fundamental rights. ये 6 हैं, earlier it was 7, लेकिन एक राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और उसको लीगल राइट बना दिया गया. नाउ इट हैज़ 6. नाउ टुडे वी हैव 6 राइट ग्रांटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वो राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ठीक है. So these are the 6 rights. The active principle of state policy, and there are some duties as well. आप जानते हैं कि rights and duties go hand in hand. आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं तो आपका कुछ कर्तव्य भी है. There are several duties. पार्ट 4A में 1976 में कुछ ड्यूटीज़ भी ऐड किए गए थे, ठीक है. And those duties are to uphold and protect the unity and integrity of India and the duty to safeguard public property. नेक्स्ट इज द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है? दीज आर द गाइडलाइंस गिवन टू स्टेट, ठीक है, टू अप्लाइज दिस प्रिंसिपल ऑन मेकिंग लॉज. ये वो कुछ निर्देश हैं जो राज्यों को दिए गए हैं और इन निर्देशों के आधार पे राज्य सरकार कानून बना सकती है. और इसमें क्या क्या है? द सिटीजन हैव एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू अरेंज एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. द इकोनॉमिक सिस्टम, ये ध्यान रखना है राज्य सरकार को कि इकोनॉमी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, ठीक है. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, यानी कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का अगर पालन नहीं हो रहा है तो आप जाकर के कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं. व्हेयरएज फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल, यानी कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होगा तो यू कैन आस्क टू कोर्ट, यू कैन गो टू कोर्ट. बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अगर उल्लंघन होता है तो यू कैन नॉट गो टू कोर्ट. ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है. यानी दैट इज़ इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल और नॉट इन्फोर्सेबल. लेकिन फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल भी और इन्फोर्सेबल भी है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे. आप इस तरह से दोनों के बीच का डिफरेंस भी बना सकते हैं 3-3 पॉइंट का. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये शायद आपके एग्जाम में भी आ सकता है. नेक्स्ट इज सेकुलर. 1976 में ये शब्द भी जोड़ा गया, यानी ये फर्स्ट टॉपिक में आप देख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है. भारत का संविधान जब निर्माण हुआ था, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट, और हमारे प्रियम्बल में सेकुलर शब्द का जिक्र नहीं है. But later in 1976 this word was added to our preamble, secular. That means धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र. हालांकि इस पे लेकर काफ़ी डिबेट और डिस्कशंस होता है. धर्मनिरपेक्ष होता है इसका मतलब, कुछ लोग कहते हैं पंथ निरपेक्ष इसका मतलब भी होता है, ठीक है. यानी every religion in our country have given equal rights, ठीक है. No special privilege is given to any of the religion in our country, nor any of the religion in our country granted any special rights or there is no official religion in our country. तो ये है सेकुलरिज्म का मतलब. रिजर्वेशन ऑफ सीट. हमारे संविधान द्वारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ स्पेशल सीट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किए जाते हैं. हालांकि ये इंक्रीज़ ही किया गया है, डिक्रीज़ आज तक नहीं किया गया है. एज़ पर द नीड. ये इसलिए किया गया है क्योंकि आर कंट्री, हम जानते हैं आर कंट्री हैव डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और वो काफ़ी बैकवर्ड हैं हमारे आज के वर्तमान समय में. ऑल कम्युनिटीज़ के मुकाबले कंपैरेटिवली दे आर वेरी वीक. तो ये जो वीकर सेक्शन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनको प्रमोट करने के लिए वर्तमान समय में जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं उनके पैरेलल लाने के लिए कुछ रिजर्वेशंस दिए जाते हैं
ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कॉलेज में रिजर्वेशंस होते हैं, ठीक है। सरकार की अलग अलग पॉलिसीज़ में उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी उनके लिए सीट्स फिक्स कर दिए जाते हैं कि आपको इतनी सीट्स मिलेगी, ठीक है। इवन दो हम फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th में देखेंगे कि 79 सीट्स और 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए फिक्स किए गए हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट इज़ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? तो स्टेट शैल प्रोवाइड इट्स सिटीजन अ वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विस। कुछ सामाजिक सेवाएं हैं जो राज्यों को देना है और वो देते भी हैं, जैसे मेडिकल केयर, फाइनेंशियल एड। अभी लॉकडाउन में आप देख रहे हैं बिहार सरकार जो है 500 रुपये गरीबों के खातों में दे रही है, या फिर वो फ्री में अनाज देती है, फ्री में शिक्षा देती है, ठीक है, सरकारी स्कूलों में। तो ये तमाम जो सेवाएँ दे रही हैं ये राज्य सरकार को देना है, इसी का मतलब है वेलफेयर स्टेट। तो हमारे जो राज्य हैं, हमारे यहाँ जो देश है, इसका उद्देश्य होता है वेलफेयर, यानी वेलफेयर देना, ठीक है, टू ग्रांट ऑल इट्स सिटीजन वेलफेयर, ठीक है। हमारा संविधान काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और ये रिजिड भी है। देयर आर सर्टेन लॉज जिसको आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वहीं कुछ लॉज हमारे देश में फिक्स हैं, उसको आप नहीं बदल सकते। फॉर एग्जांपल आवर कंट्री इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसको आप नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे देश में दूसरे ऐसे कानून हैं जिनको आप बदल सकते हैं। तो इसलिए हमारा देश के संविधान में लिखा है, इट इज़ अनदर फीचर कि ये फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी है। इन सम ऑफ द लॉज आर विल बी अमेंडेबल, ठीक है, और सम ऑफ द लॉज आर नॉट अमेंडेबल, यानी कुछ चेंज करने योग्य है और कुछ चेंज नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा गया फ्लेक्सिबल और रिजिड। रिजिड का मतलब आप जानते हैं, फ्लेक्सिबल लिटरेचर शब्द है ये। सो दिस इज इट फॉर टुडे। I hope you enjoyed this lecture. If you have any query, any question, you can ask it. अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो you might have my personal number. You can ask it on Tenno. You can ask it by comment on YouTube channel as well. Till then, have a good day. Or I hope you enjoyed it. If you like this video, please like it. Click on the like button. Subscribe our channel. Till then, have a good day. और नेक्स्ट चैप्टर हम हिस्ट्री का वेरी फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो अभी तक हमने कवर नहीं किया है, तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू। टिल देन हैव अ गुड डे।